Assalamualaikum students. Welcome in Fundamental Physical Chemistry class. We are studying chemical equilibrium and we will discuss the relationship between equilibrium constants, and this will cover in 3 lectures. And in the relationship between equilibrium constants, we will first study the relationship between Kp and Kc, where Kp is the equilibrium constant of gaseous components and Kc represent the equilibrium concentration if the reactants are liquid or in liquid state. So we will consider a general reversible reaction in order to study the relationship between Kp and Kc. So what will we do? We will have a reaction between the components A and B. Capital A and capital B, they represent the reactants, while the small a and small b, they represent their molar concentrations or active concentrations. And in a reversible reaction, they are converting into products. Products are represented here by capital M and capital L and capital M, while this small l and small m, they represent the molar concentrations of the products in forward reaction. When the reactants A, B and products L, M of the reaction are ideal gases, it is convenient to express concentration of any gas at any given temperature in terms of its partial pressure. So beforehand, इससे पहले हमने A और B को other than gaseous components तस्वुर किया, लेकिन अगर अब हम ये कंसिडर करें कि A और B जो रिएक्टेंट्स हैं और L और M जो प्रोडक्ट्स हैं, these are in gaseous phase, तो इसके लिए हम कंसंट्रेशन यूनिट्स यानी मोल पर डीएम क्यूब की बजाय पार्शियल प्रेशर जो है उन यूनिट्स में हम gaseous components को represent करेंगे. For a general gaseous reaction of the type which we have given here, the equilibrium constant Kp it can be represented as Kp is equal to partial pressure of component L raised to power small l into partial pressure of component M raised to power small m divided by partial pressure of component A raised to power small a multiplied by partial pressure of component B raised to power B. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म विच इज C, उसकी जगह हमने इसको रिप्लेस कर दिया है पार्शियल प्रेशर विच इज P. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में ये तो आपको पता ही है कि जो कंसंट्रेशन या हियर partial pressure of products we will take in the numerator and partial pressure of reactants we will take in the denominator. और ये जो small वाला A, B और L और M ये partial pressure की amount को represent करते हैं quantity को for the component L, M, A and B. तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो Kc का टर्म था उसको Kp के टर्म में चेंज कर दिया by replacing C that is concentration with P that is partial pressure. I hope that you people have understood this. However, for such a reaction, Kc may not be same. It is therefore desirable to derive a relationship between these two constants at a given temperature. ओके अब इस तरह का जो रिलेशनशिप है जिसमें हमने कंपोनेंट्स गैसियस फेज में थे, ठीक है, और उनमें
हमने Kp के यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनके पार्शियल प्रेशर के रेलेवेंट हमने रिप्रेजेंट किया, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि Kc की वैल्यू ऐसे गैशियस रिएक्शंस के लिए सेम हो। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम एक रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे बिटवीन दीज टू कांस्टेंट्स यानी Kp और Kc के दरमियान एट अ गिवन टेम्परेचर। राइट, फॉर एन आइडियल गैस द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ith कंपोनेंट इन द मिक्सचर इज गिवन बाय, ये देखें ये वाली चीज़ जो है ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आई है, जो कि हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है और वो गैसेस केमिकली एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर सकती, तो उसमें से किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर जो है वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी आई यानी partial pressure of ith component, this is equal to number of moles of ith component divided by total volume of the system multiplied by RT। बेसिकली ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है PI is equal to nRT उसी की ही एक फॉर्म है। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिया तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, where Ni is the number of moles of the gas occupying a volume V। ठीक है, तो Ni क्या है, this is the number of moles of ith गैस, यानी कोई भी गैस उसको I गैस कह ले। ठीक है, यानी हमारे पास एक गैशियस मिक्सचर है जिसमें नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं, तो उनको हमने एक नाम दे दिया, एक उनमें से एक गैस को I कह दिया, राइट, A कह दिया, B कह दिया, तो वॉट एवर। तो ये जो एक गैस का पार्शियल प्रेशर है उसमें हमने उसके नंबर ऑफ मोल्स को ये जो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैसेस उससे डिवाइड कर देना है। सिंस Ni over V दिस इज इक्वल टू Ci। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith गैस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ith गैस, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द ith कंपोनेंट। देयरफॉर अब हम क्या कर सकते हैं कि Ni over V हमने कहा कि Ci के बराबर है, सो दिस इक्वेशन इट विल बिकम Pi is equal to CI RT। राइट, तो हम क्या करेंगे कि जो पिछली वाली इक्वेशन है उसमें हर P की जगह हम ये CI RT की वैल्यू जो है वो लगा देंगे, दैट इज सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन द इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर partial pressures। So then this equation will become Kp इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये हमने यहाँ पर पी आई की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब पी आई वो जो कंपोनेंट आई है वो हमारे पास अब है एल। ठीक है, वो कंपोनेंट हमारे पास एल है, तो इसलिए यहाँ पर उस आई की जगह यानी CI RT की जगह हम लगा देंगे CL RT, और ये वाला एल तो उस इक्वेशन में यानी रेज टू पावर है एल। राइट, तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी CL RT रेज टू पावर स्मॉल एल, और m के लिए ये बन जाएगी CM कंसंट्रेशन ऑफ m रेज टू पावर m। अब ये वाले जो कंपोनेंट्स है ना, ये L M A एंड B, दीज आर नाउ गैशियस कंपोनेंट्स। गैशियस कंपोनेंट्स का पहले हमने पार्शियल प्रेशर जो है वो कंसिडर किया, फिर उस पार्शियल प्रेशर को हमने कंसंट्रेशन के साथ रिलेट किया। जब हमने कंसंट्रेशन के साथ रिलेट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसी तरह C यानी कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट A रेज टू पावर स्मॉल a, concentration of component B raised to power small b। तो ये स्मॉल एल एम ए और बी ये पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअल पार्शियल प्रेशर को ऑफ कंपोनेंट ए बी एल एंड एम। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करें कि ये देखें ये वाला जो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, यानी एक टर्म है हमारे पास सी एल और दूसरी टर्म है आर टी। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स के ऊपर एल जो है ये अलग-अलग कंसिडर होगा, तो अगर हम इनको सेपरेट कर लें यानी सी एल सी एम सी ए और सी बी, तो इनके ऊपर अलहदा से हम ये एल और एम, स्मॉल ए और स्मॉल बी इनके ऊपर लिख देंगे इनटू। ठीक है, और इसी तरह हर आर टी, इस आर टी के ऊपर भी एल है, इस आर टी के ऊपर एम है। ठीक है, तो हम आर टी और आर टी इसको कॉमन ले लेंगे, और आपको पता है पावर्स जो है ये प्लस हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा इनटू आर टी एल प्लस एम प्लस वन। इसी तरह ये नीचे जो है ये हो जाएगा आर टी कॉमन
A प्लस B प्लस सो ऑन। तो हमारे पास के पी जो है ये बराबर आ जाएगा। अब ये वाला टर्म जो है ये पिछले लेक्चर्स के मुताबिक ये वाला टर्म्स पिछले लेक्चर्स में हमने इस टर्म को प्रूव किया है के सी के बराबर। अगर आपको याद हो लॉ ऑफ मास एक्शन का जो पार्ट 1 था उसमें हमने इस टर्म को कंसंट्रेशन को के सी के बराबर कंसिडर किया। वैसे भी यहाँ से भी ये नजर आ रहा है, राइट। तो ये टर्म जो है कंसंट्रेशन टर्म है, इसको के सी के बराबर लेंगे इनटू आपके पास ये आ जाएगा आर टी। ठीक है। अब आपको पता है पावर्स को अगर सॉल्व करना हो तो एल प्लस एम प्लस ऑन माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सो ऑन। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो Kp इज इक्वल टू के सी आर टी इंटू डेल्टा एन। तो ये वाला जो होता है ना ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, और वो बराबर होता है डेल्टा एन के। तो इस तरह से हमने इसकी जगह यहाँ पर लिख दिया डेल्टा एन, right, where delta n is equal to the difference in the number of moles of products and reactants during the reaction. Furthermore, delta n may be positive, negative और zero. अब ये किस तरह से हो सकता है? डेल्टा एन पॉजिटिव उस वक्त होगा जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो डेल्टा एन पॉजिटिव हो जाएगा। और नेगेटिव किस वक्त होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स लेस होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तब वो नेगेटिव हो जाएगा। और बराबर यानी जीरो किस वक्त होगा? जब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होंगे। तो इस तरह से डेल्टा एन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, राइट। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमें के पी और के सी के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। और अगर हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो जीरो हो, राइट, तो आर टी की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि आर टी नॉड अगर हो तो वो इस क्वांटिटी को 1 कर देगा। तो इसलिए फिर क्या हो जाएगा, जब ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी तो के पी दिस विल बी इक्वल टू के सी। सो दिस इज द रिलेशनशिप व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स आर डिफरेंट, then number of moles of the gaseous reactants when they are different, then Kp is equal to Kc RT delta n, and if number of moles of gaseous reactants and products they are the same, then Kp is equal to Kc. So we have two different relationships. If the number of moles of reactants and products are different, then this equation will valid, right? But if the number of moles of reactants are the same, number of moles of reactants and products are the same, then as delta n will be 0, so Kp is equal to Kc. So hope you people have enjoyed this lecture. We will meet with another relationship between equilibrium constant in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.